morning, kids. Let's start with your fourth lesson of OC, that is business services. And today we'll start with transport. Now, exactly what is transport, guys? Transport means it's a way that we can, with the help of it, we are easily able to travel from one place to another. ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं. और लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड इट कि एग्जैक्टली व्हाट इज ट्रांसपोर्ट. Over here I'm writing the definition. Here we can say the meaning of transport. Meaning. Now, transportation is the movement of people. Transportation is movement of people. Now guys, as the definition given in your textbook, that is transportation is मूवमेंट ऑफ पीपल. ट्रांसपोर्टेशन और कुछ नहीं है, लोगों की मूवमेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आइए आगे देखते हैं कि और क्या दिया है. फ्रॉम एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. पीपल, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू another. Means guys, if you'll focus toward the meaning of transportation, so transportation is nothing but it's a movement of people, animals, goods and services from one place या from one location to another location. किसी भी चीज को, जैसे कि इंसान हो जाते हैं, एनिमल्स हो जाते हैं, कोई भी चीजें होती है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना जब होता है तो वहां पे हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन की. तो यही हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग. नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड इट कि एग्जैक्टली व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ओके, नाउ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. चलिए, now modes of transportation means what? Ways of transport. ki transportation, it's okay ki transport means movement of people, goods and services, yeah, we can say animals from one location to another. But now let's have a look toward कि exactly what are the modes of transportation. जैसे हमने मीनिंग में देख लिया कि ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है चीजों को, इंसान को या एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है या एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है. अब उसके बहुत सारे वेज होते हैं, जैसे कि उन्हें हम लोग मोड्स बोलते हैं. चलिए, एक हो जाता है हमारा रोडवेज, द अनदर वन इज रेलवेज, एयरवेज, over here waterways, monorail and metros, and one more is pipeline. Okay guys, now let's have a look toward कि exactly what are the modes of transport. Modes means what? Ways. कि ट्रांसपोर्ट के इट्स ओके. ट्रांसपोर्ट मतलब किसी चीज को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफर करना या भेजना. नाउ there are n number of ways, yeah, we can say modes of transport. The first one is roadways. Roadways means what? Through road we are able to, we can say, move goods from one place to another. Waterways, with the help of waters, yeah, ships. Pipelines, liquid usually will be transferred from one place to another with the help of pipeline. Next is railways. Heavy and bulky goods are easily, yeah, we can say heavy and bulky goods easily transferred from one place to another with the help of railways. Monorails and metros. Usually in metropolitan cities, monorails or we can say metro trains are used just to move persons from one place to another. And last but not the least is airways. Airways is the fastest mode of transport, and whenever we want to, we can say, reach somewhere urgently, at that time people are using airways. चलिए देखते हैं कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आ जाता है सबसे पहले रोडवेज. रोडवेज हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है. जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ ऑटो रिक्शा, बाइक, साइकिल्स या हमारी कार, ये सारी चीजें हमें घर तक ड्रॉप करेगी.
वाटरवेज, वाटरवेज में आ जाता है हमारा शिप विप सब कुछ। पाइपलाइन, पाइपलाइंस के थ्रू हम लोग यूजुअली वी कैन से लिक्विड्स और गैसेस पास ऑन करते हैं एक से दूसरी प्लेस। रेलवेज, रेलवेज में क्या होता है, फॉर लॉन्गर डिस्टेंस हम लोग रेलवेज को यूज करते हैं ज्यादा दूर के ट्रैवलिंग के लिए। हर जगह हम लोग रोड से नहीं जा सकते और हर कोई एयरवेज भी यूज नहीं कर सकता है बिकॉज ये बहुत ज्यादा कॉस्टली या बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, इसलिए ज्यादा दूर के ट्रैवलिंग के लिए हम लोग रेलवेज को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, मोनो रेल्स एंड मेट्रोज, यूजुअली बड़े बड़े सिटीज में मेट्रोज रेलवेज होती है या मोनो रेल्स होती है। लास्ट इज एयरवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े बड़े बिजनेसमैन या जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे होता है यूजुअली वो लोग ट्रेन में, क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा, शिप में और ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए वो लोग इमीडिएट या फटाफट पहुंचने के लिए, रीच करने के लिए उस डेस्टिनेशन पे एयरवेज का इस्तेमाल करते, जो कि बहुत सुपर फास्ट है और उसके पैसे भी उतने ही फास्ट है। चलिए आगे देखते हैं, ये सब तो थे मेरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नाउ विल डू वन थिंग गाइस कि विल एक्सप्लेन इट वन बाय वन। Let's start with कि exactly what is road transport. Okay, before moving ahead guys, let's clear the concept कि exactly what is road transport. अब देखते हैं कि road transport exactly क्या होता है। road transport ऐसी चीज होती है जो रोड्स के थ्रू या वी कैन से बाय रोड हम लोग जब एक चीज दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे कोई चीज, इंसान, एनिमल्स को ट्रांसफर करते हैं, उसे हम लोग बोल देंगे रोड ट्रांसपोर्ट। अब अगर हम बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट की, तो रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि सबसे पहले तो ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करेगा। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ ऑटो रिक्शा की, बाइसिकल्स, बाइक या और भी बहुत सारी चीजें जैसे हमारी ओन कार है एंड ऑल, इससे क्या होगा कि ये डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। प्लस इससे ट्रैफिक अगर हो तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसी हिसाब से क्या हो जाता है कि रोड ट्रांसपोर्ट के कुछ एडवांटेजेस मतलब कुछ गुड पॉइंट्स, कुछ डिसएडवांटेजेस यानी कि बैड पॉइंट्स हो जाते हैं। Now we'll do one thing guys, कि we'll draw a diagram of advantages here and disadvantages over here. So let's discuss the same one by one. Now the first one is over here advantages. Advantages मतलब उसके आप लोग अगर बोलते हो तो फायदे या उसके गुड पॉइंट्स। आइए पहले हम लोग, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चों बाद में, disadvantages. Okay. Let's start with, we can say the advantages of road transport. Now, the first one is cheap. Cheap मतलब क्या? Cheap मतलब सस्ता. The first advantage of road transport is it is the cheapest mode of transport. मतलब ये बहुत ही सस्ता मोड है ट्रांसपोर्ट का। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो जो उसके टिकट के चार्जेस रहेंगे या वॉट एवर फेयर चार्जेस आर देयर, दिस इज चीप एज कंपेयर टू airways या we can say waterways या as compared to other transports. The cost या we can say the prices of road transport is cheap in nature. ये थोड़े सस्ते होते हैं दूसरों के कंपेयर में। आइए इसका सेकेंड एडवांटेज देखते हैं। Perishable goods can be transported as a faster speed by road carriers over a short distance. Okay, perishable goods. Okay guys, as we can say road transport provide door to door service, so with the help of road transport it is very easy to transfer perishable goods from one place to another. क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है बच्चों कि उसमें इतने ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते, प्लस पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल क्या होती है जैसे कि मिल्क, वेजिटेबल्स, मीट्स एंड एक्सेट्रा, जो चीजें 2-3 दिन से ज्यादा या वी कैन से एक हफ्ते भर से ज्यादा हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। इन चीजों को क्या करना है कि परफेक्ट डेस्टिनेशन या परफेक्ट मार्केट तक के पहुंचाने का काम करता है रोड ट्रांसपोर्ट। दैट्स व्हाई द अनदर एडवांटेज या फीचर ऑफ इट इज perishable goods are easily we can say transfer या move from one place to another with the help of road transport. Let's have a look toward the third one. It is flexible mode of transport as loading and unloading is possible at any destination. Okay guys, now the third we can say advantage of it is it's a flexible form of business organization. Means what? कि loading and unloading of goods and services is very easy at every destination. Why? Because रोड हर तरफ अवेलेबल होते हैं, इसलिए ये एक फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे ऐसा होता है कि रेलवे स्टेशन नहीं है या वहाँ पे रेल नहीं जा सकती है या वहाँ पे हवाई अड्डा या एयरपोर्ट नहीं बना है,
और अगर हम बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट की, तो ये फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि ये हर तरफ रोड तो अवेलेबल होते ही होते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसका। नाउ द फिफ्थ वन इज इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। The fourth point, yeah, we can say the fourth advantage of road transport is it provides door-to-door services to the customers. Yes, if we'll travel through trains, तो ट्रेन का रेलवे स्टेशन कहीं और होता है, रेलवे स्टेशन इज फार अवे फ्रॉम योर रेसिडेंशियल या फ्रॉम योर होम। वहां से यू हैव टू हायर बस, टैक्सी या वी कैन से एक ऑटो, या आपकी अगर कार है और उसके बाद आप लोग घर पर आते हो। बट अगर हम लोग बात करते हैं रोडवे या इफ विल टॉक अबाउट एयरवेज, एयरवेज में भी वही झमेला है, एयरपोर्ट कहीं और होता है, आपका घर कहीं और होता है। बट if we talk about road transport, तो only road transport is providing door to door services to its customers। ये उसका एक और एडवांटेज हो जाता है। आइए इसका एक और एडवांटेज देखते हैं। It helps people to travel and carry goods from one place to another place where any other mode of transport is not available। Yes guys, helps। Okay, as the particular transport is cheap in nature, it's a flexible form of, we can say, transport, plus it provides door to door services। That's why it helps the traveler to carry on goods, means whatever they want to carry, easily they can carry the particular things। अगर मैं बात करती हूँ रोड ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता ट्रांसपोर्ट है, ज्यादा कॉस्टली तो है नहीं, यहाँ से ये एक फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या एक फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो हर तरफ इसमें सामान चढ़ाने और उतारने के लिए लोग इजीली मिल जाते हैं। प्लस ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये ट्रैवलर्स की बहुत हद तक की मदद कर देता है। ठीक है, ये सब थे इसके एडवांटेजेस। नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड द डिसएडवांटेजेस ऑफ, वी कैन से, रोड ट्रांसपोर्ट। Now the first one is due to limited carrying capacity, road transport is not economical for longer distance of transportation। Yes, the first disadvantage of road transport is it is not suitable for longer distances। Yes guys, it is not suitable for longer distances because as I told you that road transport is suitable for carrying या transferring perishable goods from one place to another। पेरिशेबल गुड्स को फटाफट ट्रांसफर होने में हमारी रोड ट्रांसपोर्ट मदद करती है, पर अगर मुझे 2 दिन 3 दिन का ट्रैवल करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है और अगर मैं रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती हूँ या यूज करती हूँ, या एक स्टेट से मुझे दूसरी स्टेट में भी जाना है, तो मैं रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही हेक्टिक होगा। वाइल सिटिंग हम लोग एक कंट्री से या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना बहुत ही दिक्कत वाला काम है। बैक पेन होगा, लेग पेन होंगे, पूरी बॉडी एच होगी एंड ऑल। इसीलिए रोड ट्रांसपोर्ट इज नॉट सुटेबल फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस। प्लस इफ विल टॉक अबाउट द कैरिंग कैपेसिटी। ओके, कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है कि सामान ले जाने की क्षमता। यस, अगर मैं बात करती हूँ रोड ट्रांसपोर्ट की, तो यूजुअली रोड ट्रांसपोर्ट में आ जाते हैं हमारे ट्रक्स, हमारे पास में जितनी भी कार्स है, जितने भी हमारे पास में बाइसिकल्स है, बाइक्स है एंड XYZ थिंग्स। अगर मैं बात करती हूँ कैरिंग कैपेसिटी की, तो जितना हैवी सामान शिप के थ्रू, रेलवेज के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह वी कैन से सेंड किया जा सकता है, भेजा जा सकता है, उतना रोडवेज के थ्रू नहीं जा सकता है, बिकॉज इट हैज लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट में कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। चलिए अगला वाला पॉइंट चेकआउट करते हैं इसका। रोड ट्रांसपोर्ट इज अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशंस सच एज फ्लड्स, रेन्स, लैंडस्लाइड्स एक्सेट्रा। ओके, फ्लड्स, लैंडस्लाइड, रेन and etc. Yes guys, road transport is affected with flood, landslides and rains. Why it is we can say affected with floods, landslides and rains? Because road transport is, अगर मैं रोडवे ट्रांसपोर्ट की बात करती हूँ तो वो क्या होते हैं, रोड के ऊपर होते हैं, जिसमें से अगर फ्लड आया हो या लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं या वी कैन से बहुत ज्यादा हैवी रेन है, तो उस पर्टिकुलर रोड को क्लोज कर दिया जाता है, बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं। Why? Just to avoid accidents and all. That's why this is the another disadvantage of road transport. Let's have a look toward the next one.
Let's have a look toward the next one, guys. There is a possibility of road accidents which are common. Yes, the next one is road accidents. Okay, now if we talk about road accident, so yes, of course, कि day by day we can say there is an increase in traffics and accidents. ट्रैफिक और एक्सीडेंट्स में क्या हो रहा है कि दिन ब दिन वी कैन से इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है. ये भी रोड ट्रांसपोर्ट का बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इट कॉजेज पोल्यूशन ड्यू टू एमिशन ऑफ गैसेस विच अफेक्ट द हेल्थ ऑफ पीपल. चलिए, पोल्यूशन या वी कैन से गैसेस. ओके, यस, it is the main cause of pollution as gases are passes through, we can say, road transport. So this is the main cause of pollution. इसकी वजह से pollution बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि इसमें से निकलने वाला जितना भी पेट्रोल डीजल का गैस होगा, धुआं होगा, उसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेस हो जाते हैं, बहुत सारे पॉपुलेशंस को तकलीफ हो जाती है. तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ, वी कैन से, रोडवे ट्रांसपोर्ट या road transport. Now we'll do one thing, guys. Let's have a look toward another one, that is a rail transport. चलिए, now let's start with rail transport. Now exactly what is rail transport, guys? रेल तो हमें सभी को पता है कि रेल क्या होता है, जिसे हम लोग ट्रेन बोलते हैं. यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ट्रेन. ओके, चलिए, अब ट्रेन के या रेल ट्रांसपोर्ट्स क्या होते हैं, आइए उसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे. विल सी देम वन बाय वन. ओके, first we'll talk about the advantages of rail transport. The first one is it is convenient mode of transport for traveling longer distances. Yes, long distance. The first and prime advantage of rail transport is it is suitable for longer distances. Yes, whenever people wants to travel from one state to another state, या we can say 2 या 3 दिन का जब उनका ट्रैवल होता है, तब यूजुअली लोग क्या करते हैं, रेलवे ट्रांसपोर्ट्स को प्रेफर करते हैं. भाई, क्योंकि उसमें सोने के लिए बर्थ होती है, या इट्स अ कंफर्टेबल फॉर्म है ना, वॉशरूम अवेलेबल होता है, हम लोग वॉक कर सकते हैं, या हमें बर्थ के ऊपर बैठना है, सोना है, हम हमारी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं. दैट्स व्हाई रेल ट्रांसपोर्ट इज सुटेबल फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस. नेक्स्ट, द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ इट इज it is suitable mode of transport for carrying heavy and bulky goods. Yes, heavy and bulky goods. Yes, guys. The another advantage of road transport is it's okay that it is suitable for longer distances. The another one is will be easily able to travel heavy and bulky goods from railway transport. Railway transports के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि इजीली हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी मशीन्स या हैवी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हम लोग रेलवे ट्रांसपोर्ट की मदद से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हम लोग बहुत ही लॉन्गर डिस्टेंस की भी अगर बात करें तो हैवी और बल्कि गुड्स हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं. ये हो जाता है इसका सेकेंड एडवांटेज. आइए थर्ड देखते हैं. इट इज फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज कंपेयर टू रोड. ओके, फास्टर. Okay, the another advantage of it is a faster mode of transport as compared to roadways. ये एक फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है बच्चों, मतलब इससे जो हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं ये थोड़ा फास्ट हो जाता है रोड के कंपेयर में. मतलब रोडवेज, अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है, वहां पे जाने के लिए मुझे 2 दिन लगते हैं बाय रोड, तो अगर मैं ट्रेन से जाती हूँ तो मुझे टाइम थोड़ा कम लगेगा एज कंपेयर टू रोडवे ट्रांसपोर्ट, और यही बन जाता है उसका अनदर एडवांटेज. नेक्स्ट इज इट्स ऑपरेशन इज लेस अफेक्टेड एंड एडवर्स बाय वेदर कंडीशंस. इफ वी टॉक अबाउट द वेदर कंडीशंस, तो यूजुअली रेल ट्रांसपोर्ट या रेलवे ट्रांसपोर्ट इज नॉट अफेक्टेड विथ वेदर कंडीशंस. समटाइम्स इट्स ओके बट नॉट ऑल द टाइम. यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ट्रैफिक नहीं रहेगी, पोल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज बहुत ही रेयर ट्रेंड्स आती जाती है. That's why the same will not affected with weather conditions. And the last advantage of it is it ensures safety and security of goods. Yes, it ensures safety and
security of goods and services. Yes, as I told you guys that railway transport is suitable for longer distances, plus heavy and bulky goods can be easily, we can say, transferred or shipped from one place to another place. That's why safely, or we can say it's a safe and secure form of business, yeah, we can say of ट्रांसपोर्ट. इट्स अ सेफ एंड सिक्योर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट. रेलवे ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, क्योंकि ये लॉन्गर डिस्टेंस के लिए सूटेबल है, प्लस हेवी और बल्कि गुड्स, बहुत ही ज्यादा वजनदार चीजें इससे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफर कर दी जाती है, प्लस वेदर कंडीशंस या ट्रैफिक वाला तो कोई झमेला ही नहीं है, जिसकी वजह से जो भी चीजें या जो भी मशीन आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे भेजना चाहते हो वो बहुत ही सेफ रहेगी, अच्छे से रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. चलिए, ये सारे थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द डिसएडवांटेजेस ऑफ इट. नाउ इट इज रिलेटिवली कॉस्टली फॉर कैरिंग गुड्स एंड पैसेंजर्स ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस. यस, okay, sometimes it becomes very costly, है ना, just to travel people from one place to another place for short distance. लॉन्गर डिस्टेंस के लिए तो इट्स ओके कि लोग लॉन्गर डिस्टेंस के लिए इसका यूज करते हैं, लेकिन कुछ लोग अगर इसे शॉर्ट पीरियड के लिए या थोड़ी सी जगह पे जाने के लिए यूज करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, तो फॉर देम इट इज अ कॉस्टलीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. उन्हें ज्यादा टिकट के या फेयर चार्जेस देने पड़ते हैं. नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज इट इज नॉट अवेलेबल इन रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, है ना, रिमोट. Okay, the another one is it is not available in remote parts of the country. हर एक जगह पे या हर तरफ में ट्रेन अवेलेबल होंगी, ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. ट्रेन अगर कहीं पे होनी चाहिए तो सबसे पहले वहां पे हमें उसका रेलवे ट्रैक बनाना होगा. अब दिस इज नॉट पॉसिबल. आई विल टेक एग्जांपल ऑफ सम रूरल एरियाज या सम विलेजेस. तो टिल नाउ दिस बिकॉज ऑफ रेलवे ट्रैक्स आर नॉट देयर, ट्रेन आर नॉट कमिंग ओवर देयर. क्योंकि वहां पे रेलवे ट्रैक्स ही नहीं है तो वहां पे ट्रेन भी नहीं आती है ना, उस पर्टिकुलर गांव में रेलवे की फैसिलिटी ही नहीं होती है. द अनदर डिसएडवांटेज ऑफ इट इज नॉट अवेलेबल इन रिमोट पार्ट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर कंट्री. आइए देखते हैं कि हर तरफ ये अवेलेबल नहीं है. द नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स हेवी लॉसेस ऑफ लाइफ एज वेल एज गुड्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स. हेवी लॉसेस in case of accidents. Okay, usually there are less chances of accidents in railway transport, but if accident due to some circumstances, if accidents occur or if accidents happen, so there should be, there would be a heavy loss in that particular goods or services just because of accidents. ठीक है, रेलवे ट्रांसपोर्ट्स में ट्रैफिक नहीं होती है, एक्सीडेंट्स इतने नहीं होते एंड ऑल, बट अगर वी कैन से अगर एक्सीडेंट हो जाता है ना, कभी जाने अनजाने में एक्सीडेंट हो जाता है किसी कारण की वजह से, तो उसमें होने वाला लॉस बहुत हैवी होता है. वाई? क्योंकि यहाँ से हैवी और बल्कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है. इसमें यूजुअली होती है मशीन्स, बड़ी बड़ी मशीन्स. अगर एक्सीडेंट की वजह से उन मशीन की कॉस्ट भी बहुत सारी होती है, 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख, बड़ी बड़ी अमाउंट्स की मशीन होती है. अगर एक्सीडेंट की वजह से उस मशीन का कोई पार्ट टूट जाता है या नुकसान होता है, तो वो एट अ टाइम पे 50 लाख 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा के नुकसान होते हैं, जिसकी वजह से हैवी लॉसेस हमें बेयर करने पड़ते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट. आइए अगला डिसएडवांटेज देखते हैं इसका. टाइम फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट देयर एज ट्रेन्स आर रनिंग एज पर देयर फिक्स्ड टाइमिंग्स. ओके, टाइमिंग्स. ओके, द मेन ड्रॉबैक ऑफ इंडियन ट्रेन इज एज वी ऑल नोज कि इंडियन ट्रेन कभी टाइम पे नहीं होती है ना. टाइम होगा 1 बजे, ट्रेन आएगी अपनी मर्जी से, 2 बजे भी आ सकती है, 1:30 को भी आ सकती है, 1:45 को भी आ सकती है. ओके, तो एक जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं इंडियन टाइमिंग को फॉलो कर रही है ट्रेन, है ना, ये हम लोग एक वीकेंड से बोलते रहते हैं यूजुअली. तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक या सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका होता है कि यूजुअली द ट्रेन इज नॉट फॉलोइंग एग्जैक्ट टाइम टेबल. द ट्रेन इज रनिंग ऑन दर ओन टाइमिंग, उसके मर्जी का टाइम होता है, वो उसी पे चलती है. ठीक है, ये होता है अगला डिसएडवांटेज. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इट डज नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस. यस, डोर टू डोर सर्विस. Okay guys, and last point of the day is railway transport is not providing door to door services to its customer. Yes, but of course
just because of railway tracks, yeah, we can say railway tracks are not there, railway transport is unable to provide door to door services to its customer. हर जब वी कैन से हर प्लेस पे रेलवे ट्रैक्स होना पॉसिबल है नहीं, इसीलिए रेलवे स्टेशन कहीं और होते हैं, आपका घर कहीं और होता है, और यही कारण है कि वो डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड आपको नहीं कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा है रोड और रेलवे के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगले लेक्चर में हम लोग जो बचे हुए हैं उनका देख लेंगे। थैंक यू सो मच।